دنیش کلمہ پڑھ لو، مجھے ٹھیکیدار کہہ رہا ہے، اس کا ٹھیکیدار کا سارا دن کام رشوت دینا ہے، اسے پتہ نہیں الراشی والمرتشی فی النار وہ ہے، ہمیں جنم کی آگ سے سکھاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں بت پرستی سے آپ جہنم میں جاؤ گے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے قبروں کی پرستش کرتے ہوئے، قبروں پر ماتھا ٹاکتے ہوئے، وہ بھی ہمیں آ کر سر وہ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 90 میں اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پان سے شیطانی کام ہے۔ سر یہ میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں، قرآن شریف میں آیا ہے، آئین کا آرٹیکل 20 کہہ رہا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بھی حق ہے کہ ہم تبلیغ کریں۔ کیا دنیش کمار سیدال ناصر پر تبلیغ کر سکتا ہے؟ اس دن گردن کاٹی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کا سبق دیا۔ مجھے پتا نہیں کہ ایک حدیث ہے ضعیف ہے کیا کہ جب ان کے اوپر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، ایک دن اس بڑھیا نے ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا تو وہ ان سے پوچھنے گئے، وہ غیر مسلم تھی، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلم ہو گئے۔ قرآن میں بھی آیا ہے لکم دینکم ولی الدین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے۔ سر جہنم کی آگ سے وہ ڈراتے ہیں جو خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے سود خور بھی دیکھے ہیں کہ وہ آ کر تبلیغ کرتے ہیں ہم پر۔ جناب چیئرمین، گزشتہ روز سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے میرپور ساکرو تحصیل ہے، میرپور ساکرو تحصیل ہے، وہاں پر 6 غیر مسلم ہندو لڑکیوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ اسکول کی جو ہیڈ مسز ہے وہ انہیں ہمیشہ کہتی ہے کہ جی آپ ہندو لڑکیاں بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے، اور اس طرح سے کافی۔ سر یہ تو ایک واقعہ ہے، وہاں پر یہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سر اس امر کی یہ آئین پاکستان ہے، دستور پاکستان، اس امر کی اسلام، اس امر کی انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا مذہب ہے، قرآن میں بھی آیا ہے لکم دینکم ولی الدین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کا سبق دیا۔ مجھے پتا نہیں کہ ایک حدیث ہے ضعیف ہے کیا کہ جب ان کے اوپر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، ایک دن اس بڑھیا نے ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا تو وہ ان سے پوچھنے گئے، وہ غیر مسلم تھی، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلم ہو گئے۔ سر ابھی مجھے بتائیں، چلیے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی ایسے لوگ آئے، یہ تو رپورٹ ہوا ہے واقعہ۔ سر کافی ایسے لوگ آئے ہیں کہ ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے، اور کون ڈراتے ہیں؟ سر جہنم کی آگ سے وہ ڈراتے ہیں جو خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے سود خور بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے سود خور بھی دیکھے ہیں کہ وہ آ کر تبلیغ کرتے ہیں ہم پر۔ آپ تھوڑا سا مولانا واسع صاحب سے فاصلہ رکھ لیں، پھر یہ بات نہیں مولانا صاحب ہمارے ہمدرد ہیں، میں نے مولانا صاحب سے دیکھیں تھوڑا سا احتیاط سے۔ نہیں سر دیکھیں مولانا صاحب میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، مولانا صاحب میرے بڑے ہیں۔ اچھا سر آپ دیکھیں برداشت کا، میری ساری زندگی مولانا صاحب سے گزری ہے، مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہم اپنے اعمال صحیح دے کریں پھر کسی غیر مسلموں پر ہم تبلیغ کریں، ہمیشہ۔ سر یہ ہوتی ہے اصل، وہاں پر ان کے مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی پہلے ہم اپنے گھر کو صاف کریں، اپنے اعمال صاف کریں، تاکہ ایک غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کرے، کسی زور زبردستی سے نہ کرے۔ سر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں، سر آئین پاکستان، اگر آپ کے پاس آئین پاکستان کی بک پڑھی ہوئی ہے؟ جی سر، اس میں آپ
आर्टिकल 20 देखें, सफा नंबर बताइए। आर्टिकल 20 देखें, आप आर्टिकल 20 देखें, उसमें आप चेयरमैन साहब को आर्टिकल 20 निकाल कर दिखाएं सर। उसमें लिखा हुआ है तो मैं देखना शुरू कर, हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, इस पर अमल करने और इसकी तबलीग करने का हक होगा। आइन का आर्टिकल 20 कह रहा है कि हम गैर मुस्लिमों को भी हक है कि हम तबलीग करें। क्या दिनेश कुमार सैयद अल नासिर पर तबलीग कर सकता है? उस दिन गर्दन काटी जाएगी। नहीं, ये सर इसमें आइन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से सर लिखा हुआ है जो ये जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, आइन का आर्टिकल 22 कहता है किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को आइन पाकिस्तान की कुल्लम खुला कर। इसी तरह से आइन के सर आर्टिकल 22 की शिक बे सर इसमें लिखा हुआ किसी शहरी को नस्ल व मजहब, जात या मकाम पैदाश की बिना पर किसी ऐसे तालीमी इदारे में दाखिल होने से महरूम नहीं किया जाएगा जिसे सरकारी महसूल से इमदाद मिलती हो, गवर्नमेंट के स्कूलों से। इसी तरह से सर बहुत सी हैं। और एक है 227 जिसमें कहा गया है सर, ये सबसे बहुत अच्छी बेहतरीन है, जिसकी हम मिसाल देते हैं कि तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान पाक और सुन्नत के एहकामात के मुताबिक बनाया जाएगा। इसमें भी कहा गया कि इस हिस्से में किसी अमर का गैर मुस्लिम शहरियों के लिए कवानीन शख्सी या शहरियों के बतौर उनकी हैसियत पर असर नहीं पड़ेगा। यहां पर भी कहा गया है कि गैर मुस्लिमों के लिए जो इस्लामी कानून में जो उनके ऊपर होगा उनके लिए वो कानून नहीं बनाए जाएंगे। सर ये है सर, आप देखें कि कुरान शरीफ में भी है ला इकराह फील दीन। हाँ, ला इकराह फी दीन, किसी पर जबर नहीं है। सर इस तरह से बेशुमार मिसालें, खुलफाए राशिदीन की मिसालें हैं, वहां बुजुर्गों के जिन्होंने अपने अमाल से, जिन्होंने अपने तरीके से लोगों को मुस्लिम किया, इस तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है कि जी जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने दस्तूर साज असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि जी तमाम मजहब के लोग अपने मज़हब की प्रैक्टिस में आजाद हैं, किसी पर किसी को जबर नहीं है। सर आप देखें ये कब से हमारे यहाँ बहुत ही बलोचिस्तान में आप देखें इंटरफेथ हारमोनी कितनी है, तमाम मज़हब के लोग आपस में। ये सिंध एक सूफियों की सरजमीन थी, सिंध में अमन अमान था, सिंध में किसी किस्म पता नहीं ये अब कहां से इस तरह से घुसाई है, इस तरह की बुनियाद परस्ती। सर हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो हमसे बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जरा प्लीज सर ये अहम मसला है, सर अहम मसला है सर 1 करोड़ जवाब की जी में 1 करोड़ अकलियत का मसला है सर। और ये मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये सर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का है, क्योंकि हम इस्लाम का एक रोशन चेहरा है। अगर हम खुश होंगे, बर्दाश्त होंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम की और पाकिस्तान की तारीफ होगी। सर हमें ये ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं सर, एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, ये नहीं है सर, एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, वो आकर मुझ पर तबलीग कर रहा था कि दिनेश अभी आपने यूटर्न ले लिया। नहीं यूटर्न नहीं, मैं कहता हूँ ये नहीं है, ये नहीं है ठेकेदार। एक मेरा दोस्त है ठेकेदार है, मुझ पर आकर तबलीग करता है कि दिनेश कलमा पढ़ लो, मुझे ठेकेदार कह रहा है, उसका ठेकेदार का सारा दिन काम रिश्वत देना है, उसे पता नहीं अल राशि और मुर्तशी फील नार वो है, हमें जन्म किया आग सिखाता है। सर ये देखें यहाँ पे भी ठेकेदार है, आप नाम ले लेता कि नहीं, मैं आपको कहता हूँ वो जो हजूर पाक की हदीस को नहीं पढ़ता वो भी आकर हमें जहन्नम के आग के बारे में बताता है। और हमें सर ऐसे लोग भी करते हैं सर मैं आपको बताऊं जरा मुख्तसर नहीं सर, मैं तसल्ली से आपको बता रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं हमें कहते हैं बुत परस्ती से आप
जहन्नम में जाओगे। मगर मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कब्रों की परस्तिश करते हुए, कब्रों पर माथा टाकते हुए, वो भी हमें आकर सर वो इस तरह से बताते हैं। शुक्रिया जी। नहीं शुक्रिया क्यों सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। तो मैं सर हमें हम कहते हैं कि वो हों, आ जाएं, अपने अमाल से साबित करें, फिर हम पर आकर तबलीग करें, हमारी बच्चियों पर तबलीग करें, उनको कन्वर्ट करें। इस तरह मेहमानों की मगरिब रात को वो भी हम पर तबलीग करते हैं। खुदा की कुदरत सर। देखें सर, हम तो यही कहते हैं उसमें सर सूरह अल-माइदा आयत 90 में ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से शैतानी काम है। सर ये मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ में आया है। कहीं कंफ्यूज हो गए आप, बार बार आप उस तरफ करें। किधर मैं नहीं करता हूँ की गैलरी की सर। आप बात सब ने इस पे बात करनी है, प्लीज आप बैठे। हाँ सर, मैं यही कहता हूँ। प्लीज मुख्तसर सर हमें अभी जवाब ले ले। मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, जायज़ नाजायज़ तौर पर तंग ना किया जाए। एक अच्छा चेहरा हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम पर इस तरह की वो पाबंदियां ना लगाई जाएं, या हम हमारी बच्चों पर इस तरह से उनको अगवा करके इस तरह से ज़बरदस्ती मज़हब कबूल ना कराया जाए। हमारा मुतालबा सर एक ही है, सर एक मुतालबा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से होना चाहे हमें एतराज़ नहीं, हमें किसी पर कोई एतराज नहीं। कम से कम ये हो कि जिन बच्चों को मजहब चाहिए उनके माँ बाप से तो मिलने दिया जाए। सिर्फ ये हमारा मुतालबा है। बस, थैंक यू जी। इससे पहले कि आप मैं वो साहिबजादा साहब भी बात करना चाहते हैं, कादरी साहब, वो भी कर ले, फिर आप उसका जवाब दे दें।